हाय हेलो नमस्ते। मैं राजीव कुमार सृजन क्लासेस से फिर से आप लोगों के सामने। अ, ये हमारा सर्कल का सेकंड पार्ट है। एक सेकंड पार्ट ऑफ सर्कल। In the first part, we have discussed about the theorems, important theorems, primarily related to class 10. And I told you people that you need, before coming to class 10, you need to revise the theorems of class 9, right? I will give the description of that video, right? So please go watch that video and then start solving questions. So in this particular part we'll be discussing few important questions of circle, right? It will start from very basic questions to advanced questions. So I will request you people to be with us. uh, हो सकता है कि थोड़े क्वेश्चंस आपको आसान दिखें, तो इट इज अप टू यू, but I will request you people to please cooperate with us. See what all questions I'm taking, and जैसे ही पार्ट 3 में मूव करेंगे वहां पे आपको देखिएगा कि और अच्छे क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं, जो कि मेरे हिसाब से हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में अपीयर हो जाए या फिर इसके आसपास के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले आसान क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन, राइट? पहला क्वेश्चन कहता है लाइक फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of circle is, right? ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें चार ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज 7 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन इज 12 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन इज 15 सेंटीमीटर, द फोर्थ ऑप्शन इज 24.5 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो our diagram over here is this, and it is given like we are having a tangent over here, right? And let's say this is the point Q over here, right? Over here it is given like this is the center O. So length of OQ is given as 25 centimeter, and length of the tangent, let's say I've taken this point as P. The length of PQ is given as 24 centimeter, right? So in this particular question they are asking about radius. It means what is radius? So radius क्या होगा, right? The distance between the center and the outermost or the boundary of the circle, right? That is R. Clear? Very simple. We can easily use Pythagoras theorem. If you remember the triplet is 25, 24, and 7, right? So from here itself you can quickly give the answer as 7 centimeter, or else you can use Pythagoras theorem. That is over here, this part is 25, this part is 24, so it is what, 25 square is equals to 24 square plus r square. So over here again I want to say something to you people, like देखिए यहाँ पे करने के लिए क्या है, आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। वन वे दैट कैन बी डन। एक और तरीका है, 25 स्क्वायर माइनस ऑफ 24 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस ऑफ बी। तो 25 प्लस ऑफ 24 इट विल बी 49, 25 माइनस ऑफ 24 इट विल बी 1, तो आर स्क्वायर, राइट? तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, राइट? तो ओवर हेयर द करेक्ट आंसर इज व्हाट, इट इज 7 सेंटीमीटर, राइट? तो आप either you remember this or you are having, if you remember the triplet, it's quite easy for you to give the answer. Okay, चलिए काफी आसान क्वेश्चन था और मैंने बोला भी था कि क्वेश्चन काफी इजी रहेगा। Moving to question number 2. Over here a diagram is given something like this. Circle is there with center, and these are the tangents. Let's say O, this is P, Q, T,
Okay, this is the diagram given, and in this they are telling something. If TP and TQ are two tangents of a circle with center O, so that angle POQ, this angle is 110 degree. Find the value of PTQ. See, this is very simple question, right? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले वी नीड टू सी समथिंग, राइट? थोड़ा सा elaborate करूंगा. Over here, what we can see, right? So this is the circle. This is the external point we have taken. जो हमारा टेंजेंट है, ये हमारा सेंटर है. तो आप जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा जो पहला थियरम है इस क्लास 10th में वो क्या है कि टेंजेंट और रेडियस जो है वो हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाता है. तो आप गौर करिए कि हमारे पास अगर ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, लेट्स से अगर हमारे पास ये P है, ये O है और ये Q है, तो P, O, Q और T एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन कर रहा है, राइट? और मुझे पता है कि क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स जो होता है वो होता है 360 डिग्री, राइट? यानी कि आप जब ये चारों एंगल कवर करेंगे तो इनका सम क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा, राइट? तो यही काम, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे, राइट? उसको रहने देते हैं, यहाँ देखते हैं. तो सिंस ये दो वैल्यू क्या है हमारे 90 डिग्री है और हमारे पास 110 डिग्री है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, लाइक आपको पी टी क्यू चाहिए, तो एंगल पी टी क्यू प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट? आप इसमें से अगर घटा लेंगे तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू, एक इसमें कर देंगे पी टी क्यू प्लस 110 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट? ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको एग्जाम में ये स्टेटमेंट लिखना नहीं है, ये आपके विजुअलाइजेशन के लिए है. आप सीधे ध्यान ये रखेंगे कि अगर इस टाइप का केस है तो हमारे जो भी ये दो एंगल होंगे ये हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि इनका सम क्या होगा? वो होगा हमेशा 180 डिग्री, बिकॉज ये दोनों 90-90 हैं. तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, राइट, कि हमारा ये एंगल और ये एंगल जो है इनका सम हमेशा 180 डिग्री रहेगा. काफी आसान है. अब इसके बाद से पी टी क्यू निकालना बहुत ही आसान हो गया. 180 डिग्री माइनस ऑफ 110 डिग्री जो कि है 70 डिग्री, राइट? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 70 डिग्री. अगेन मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि ये जो एक POQT एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन कर रहा है, राइट? उसमें ध्यान क्या देना है कि ये दोनों एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री हैं और ये दो एंगल्स जो होंगे वो आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. तो प्लीज इन सब कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा. आपका क्वेश्चन बनाने का स्पीड, सिंस ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको तुरंत क्वेश्चन ये बना लेना है, राइट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साइड में. ओके, एक और रिक्वेस्ट है दैट प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग. आपके कमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, राइट? तो पहले जितने भी थियरम्स है सारे थियरम्स को देखिए, राइट, उनको पढ़ते रहिए और क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते रहिए. बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के साइड, राइट? थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle with O are inclined to each other at an angle of 80 degree, find angle POA, right? और POA is equals to what? ऑप्शंस अगेन इसमें दे रखे हैं इन्होंने. 50 डिग्री दिया है, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री दे रखा है इन्होंने, राइट? तो थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन में है दिस इज द सर्कल, राइट?
ये हमारा सेंटर है। अगेन ये हमारे दो रेडियस हो गए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ओके, इसको इन्होंने जोड़ दिया है, इसको लिखा है P, ये है हमारा A, ये है हमारा B, राइट। ये दोनों 90 डिग्रीज हैं। ओके, अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एंगल 80 डिग्री कौन सा है, आपका एंगल ये है 80 डिग्री, राइट। इस क्वेश्चन को मैं बात करूंगा, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ और चीजें आपको देखनी है। तो क्लियर सा बात है, अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ये 100 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद से इन्होंने पूछा इस क्वेश्चन में कि फाइंड द एंगल ऑफ पी ओ ए, राइट, ये एंगल कितना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देख ले, राइट। वो कंक्लूजन ये है, शायद मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, अगर आपको याद हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये टी है, राइट। तो ये दोनों जो ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल ओ ए टी, राइट, ट्रायंगल ओ ए टी, ये कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल ओ बी टी के। इट मीन्स क्या, ये जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूटिलाइज करेंगे और सीधे देख लेंगे, ये पूरा का पूरा हमारा जो वैल्यू है वो 100 डिग्री है, तो इसका जब आप हाफ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, और 50 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन के लिए यूजुअली आपको पेन भी नहीं यूज करने की जरूरत है, अगर आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, यहाँ दोनों एंगल बराबर होंगे। यहाँ हमने पता कर रखा है कि ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, या ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। तो बहुत सीधा 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 आप आंसर निकाल सकते हैं, राइट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन के साइड में। अब क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो प्रूव करना है, राइट। तो प्लीज इस थ्योरम को ध्यान में रखिएगा कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उससे आपका लाइफ और आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड of a diameter of a circle are parallel। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि like we are having this circle, right, with center O, and we are having this diameter, right. So over here one of the tangent passing from here and one of the tangent is passing from here. Let's say this is tangent L and this is tangent M, right. This is A, this is B, and this is your center, right. Okay, so in this question they have mentioned that this AOB is what it is, a diameter, right. So if you take this given part, AOB is diameter, right. And we know that since whenever we are having any sort of line, it will be what 90 degree, it will be 90 degree, and AOB is a diameter. It means AOB is a straight line segment, right. It is a straight line segment. बहुत आसान। तो सिंस इफ दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, और हमें पता है, राइट, कि व्हेन द सम ऑफ
two co-interior angles is 180 degree. I'm writing it over here. Sum of two co-interior angles is 180 degree, right? Then the two lines are parallel to each other, right? यहाँ पे ध्यान यह देना है कि अगर इन दोनों का सम जो है क्या है, इनका और इनका सम अगर 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के. सो क्लियरली देख सकते हैं दिस इज 90 डिग्री, राइट, एंड दिस इज आल्सो 90 डिग्री. तो ये कितना हो जाएगा, अब इनका सम करेंगे तो इट विल बी 180 डिग्री, राइट. तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. कभी कभी क्या कहते हैं कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है, then also we say that two lines are parallel to each other, right? So आप जब भी प्रूव करेंगे, first of all given जो भी रहेगा, please conclude this that AOB is a straight line segment over here, right? तब उसके बाद से आप आगे बढ़ेंगे और फिर प्रूफ में जाएंगे. प्रूफ में सिंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये दो लाइन इनका कोइंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है, या फिर आप ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो आप क्या लिखेंगे, दैट टू लाइन्स आर व्हाट, पैरेलल टू ईच अदर, हेंस लाइन L इज व्हाट, इट इज पैरेलल टू M. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, मेरे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप जाइए वहां से भी प्रूफ चेक कर सकते हैं, ठीक है. बहुत ही आसान प्रश्न है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. It is a very important chapter for your examination. Those who are appearing for basics, right, जिन्होंने मैथ्स बेसिक लिया हुआ है उनके लिए 8 नंबर का ये चैप्टर है, और जो लोग एडवांस स्टैंडर्ड ले रखे हैं उनके लिए 7 मार्क्स का चैप्टर है. तो प्लीज इस चैप्टर को कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, इस चैप्टर पे अच्छे से रिवाइज करिएगा सारे थियरम्स का. अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्लास 9 के थियरम्स को प्लीज एक बार देख लीजिएगा, राइट, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में होगा. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. Find the radius of the circle. Again the question is very simple, direct. If you know the formula, straight away you can solve the question. Okay, अब क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, राइट, आज का क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा सर्कल है, राइट. इसके बाद उन्होंने क्या दिया है, सेंटर एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी कि जैसे हमने ये टेंजेंट लिया हुआ है, ओके, और ये कहीं एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट कर रहा है, राइट. देख रहे हैं, ये लेंथ इन्होंने दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट दिस रेडियस. आप सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और ये क्वेश्चन को एक बार में आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट. अगर आपको याद हो तो ये एक अपने पास ट्रिपलेट भी होता है 3, 4, 5 का, तो आप स्ट्रेट अवे आर का वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं. और एल्स अगर आपको नहीं याद है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, दैट इज 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर. तो 5 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. तो एक बार आप ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर के हिसाब से चलेंगे तो 9 मिल जाएगा. आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, राइट. एक और चीज सजेस्ट करना चाहूंगा आप लोग को, इधर यहाँ पे चूंकि ये छोटे वैल्यूज हैं तो आप स्क्वायर करके इनका वैल्यू निकाल सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप इनको ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस ऑफ बी के तरीका से भी सॉल्व करेंगे तो काफी इजिली सॉल्व हो जाएगा, राइट. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन सारे ही सिंपल हैं
और अगर आपको कुछ अचीव करना है, अगेन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो बहुत सारे सैम्पल पेपर्स आ चुके हैं, बहुत सारे कोर्स मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, जिसको कि आप सॉल्व करेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे बोर्ड्स में फॉर श्योर। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of larger circle which touches the smaller circle. Right? सबसे पहला चीज कि क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। राइट, ये टर्म है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक मीन्स सेम सेंटर। राइट, तो दो सर्कल जिसके कि सेंटर क्या हो, सेम हो। लाइक सपोज आपके पास एक सर्कल ये है, लेट्स से सेंटर ये है, और एक और दूसरा सर्कल जिसका भी सेंटर सेम ये ओ। तो इस टाइप के सर्कल्स को लेट्स से आपका सर्कल C1 है, लेट्स से ये सर्कल C2 है, तो आप बोलेंगे C1 और C2 जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। राइट, तो इसी में ये क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन दोनों ही आपके सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पे भी आ सकते हैं। राइट, चलिए देखते हैं। तो पहला सर्कल इन्होंने ड्रॉ किया है, राइट, सेंटर ओ, और एक और सर्कल इन्होंने डाला है सेंटर ओ। राइट, इन्होंने दे रखा है कि बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, वो 5 सेंटीमीटर है, और फिर ये जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस उन्होंने देखा है 4 सेंटीमीटर। राइट, ओके। 2000 years later. अभी जो आपने थोड़ी देर के लिए पॉज देखा, ठीक है, वो हमारे सुपुत्र हैं, वो आ गए थे बीच में। और देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बढ़ना ही छोड़ दें। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट, इसी क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है, मैं इस क्वेश्चन को फिर से ड्रॉ करना चाहूंगा ताकि आपका विजुअलाइजेशन जो हो वो थोड़ा बेहतर हो। देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके क्लास 9th का भी थ्योरम यूज होगा और क्लास 10th का भी थ्योरम यूज होगा। इसका लेंथ इन्होंने दे रखा है 4 सेंटीमीटर और इसका लेंथ इन्होंने दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आई होप अब अच्छा विजुअल सारा होगा। और यहाँ से क्या है, इन्होंने दिया है कि एक कॉर्ड ड्रॉ करना है जो कि स्मॉलर सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा है। लेट्स से मैंने ये पॉइंट ले लिया है P। अब यहाँ थोड़ा सा समझना है, समझना ये है कि अगर आप बड़े सर्कल में देख रहे हैं तो हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, यानी कि ये जो हमारा A P B है, ये बड़े सर्कल में एक कॉर्ड की तरह काम कर रहा है। और राइट, अब देखते हैं छोटे सर्कल में। तो छोटे सर्कल में क्या हो रहा है, ये एक टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। राइट, इट इज वर्किंग लाइक अ टेंजेंट। तो ओवर हियर इट इज A P B। नाउ थोड़ा सा ध्यान ये देना है, ये थ्योरम हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, और इस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, जब भी कोई लाइन, whenever a line passes from center and it intersects the chord, it bisects, perpendicularly bisects the chord। ये जो लाइन है, ठीक है, जब भी सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड पे जाता है तो उसको क्या करता है, वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस दिस एंगल विल बी 90 डिग्री एंड दीस टू लेंथ विल बी सेम। राइट, ओवर हियर इट विल वर्क एज अ टेंजेंट। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में अब हमने ये ड्रॉ कर दिया है पॉइंट P पे। राइट,
और अब क्या कर सकते हैं, सिंस अगर हम बड़े सर्कल की बात करें तो उसका रेडियस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले की बात करें तो 4 सेंटीमीटर है, और ये हमारा 90 डिग्री है। अगेन अब जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मैंने अभी जस्ट बोला था आपको कि हमारे पास 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो स्ट्रेट अवे हम कह सकते हैं कि ये लेंथ जो है वो हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर है। अगर नहीं है तो प्लीज पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सिंस अभी जस्ट मैंने बताया कि ये बड़े सर्कल के लिए दिस APB इज अ कॉर्ड, तो ये जब 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, यानी कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि टेल मी द लेंथ ऑफ AB, तो AB का लेंथ क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर दैट इज 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए मैंने पहले भी बोला था कि क्लास 9th का थियरम आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले वीडियो में ही कुछ लिस्ट भी दे रखा था कि ये थियरम्स आप प्लीज ध्यान रखिएगा, राइट। और उसके बाद से देखिए चूंकि ये यूज हो रहा है तो प्लीज 9th के थियरम्स को देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आज का 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कहता है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle, right? The figure is given. Prove that AB plus CD is equals to AD plus BC, यानी कि आमने सामने के एंगल्स, आमने सामने के साइड्स का सम जो है वो बराबर होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं, एक डायग्राम इन्होंने दे रखा है, ये सर्कल है, और ये हमेशा ध्यान रखिए कि इन्होंने क्वाड्रिलेटरल बोला हुआ है, तो क्वाड्रिलेटरल लेना है आप अपने हिसाब से, पैरेललोग्राम या फिर स्क्वायर या रोम्बस लेना शुरू मत कर दीजिएगा, राइट। क्वेश्चन मेरे को लग रहा है डायग्राम थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि विजुअलाइजेशन बढ़िया हो। और थोड़ा डायग्राम मेरा फ्री हैंड है तो उसके लिए माफ कीजिएगा आप लोग, समझना ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा एक सर्कल है जो कि सर्कमस्क्राइब है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये एक सेंटर है ओ, राइट। तो यहाँ पे ABCD, राइट। तो इसमें प्रूव क्या करना है, दैट AB प्लस CD आमने सामने के साइड्स इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, यानी ये दोनों साइड, मतलब इन दोनों साइड्स का सम इन दोनों साइड्स के सम के बराबर है, राइट। यही प्रूव करना है आपको। ओके, अगेन अब इस सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, क्या ये पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं, राइट। मैं थोड़ा सा मार्किंग और कर देता हूँ, लेट्स से P Q R और S, where P Q R S are the points which are touching the quadrilateral at 4 different points, right? ओके, तो अब गौर कीजिए, इसी सर्कल के लिए यहाँ पे D भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, A भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और B भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, राइट। तो अब देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से हमने पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो बराबर होता है, यानी कि अगर हम बात करें DP जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, SD के बराबर हो जाएगा, AS जो है किसके बराबर हो जाएगा, AP के बराबर हो जाएगा, RB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, BQ के बराबर हो जाएगा, और QC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो CP के बराबर हो जाएगा, राइट। जो सेकंड थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था टेंजेंट के लिए,
अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर से पीछे जाएंगे और इस थ्योरम को देखेंगे। नाउ चलिए अब इसका प्रूफ जो है क्या है, पहला प्रूफ हम यहां से शुरू करते हैं, राइट। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे Cp इज इक्वल्स टू QC, राइट। Cp जो है किसके बराबर है, QC के बराबर है। अगला चीज देखेंगे Dp इज व्हाट, इट इज इक्वल्स टू DS, राइट। अब थोड़ा सा सीधे ऊपर चले आते हैं तो यहां लिखेंगे AR जो है वो किसके बराबर है, AS के बराबर है, राइट। फिर यहां देखते हैं तो यहाँ क्या है, RB जो है वो किसके बराबर है, BQ के बराबर है। और सारे पॉइंट्स ये जो बराबर है ये Q है, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, राइट। जो हम लोगों ने पढ़ा था थियरम, सेकेंड थियरम हम लोगों ने पढ़ा था। नाउ आपके पास ये डेटा है, राइट। तो क्या इस पूरे कॉलम को हम ऐड कर सकते हैं और क्या इस पूरे कॉलम को ऐड कर सकते हैं, चलिए करते हैं। Cp प्लस DP प्लस AR प्लस RB ये किसके बराबर हो जाएगा, QC प्लस DS प्लस AS प्लस BQ, राइट। ओके, नाउ अब देखते हैं ये Cp प्लस DP। आप यहाँ पे देखिए Cp प्लस DP इज एक्चुअली व्हाट इट इज, CD। तो इस पूरे चीज के लिए हम लिख सकते हैं CD। नाउ सिमिलरली आप देख लीजिए AR प्लस RB क्या है, ये पूरा का पूरा AB के लिए आता है। आप इसी तरह से इस साइड देखेंगे दैट QC प्लस BQ, QC, ओके, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे तो QC प्लस BQ हो जाएगा और DS प्लस AS हो जाएगा। तो यहाँ QC प्लस BQ, राइट, आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और DS प्लस AS, DS प्लस AS क्या हो जाएगा आपका, AB हो जाएगा। नाउ अब यहाँ से आप सीधे लिख सकते हैं AD प्लस AB इट इज इक्वल्स टू BC प्लस AD। एक्चुअली आपको यही प्रूव करना था, राइट। या फिर आप इसको और लिख सकते हैं, लाइक AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, राइट। तो बहुत सिंपल था इसका प्रूफ। सिंपल आपको विजुअलाइजेशन रखना था कि ये हमारा जो एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होगा, वो हमेशा बराबर होगा लेंथ में, राइट। ओके, आई होप ठीक लग रहा होगा आपको इसका सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 8। Again, if you need to have a successful life at any point of time, right, you need to practice। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अभी आप 10 दे रहे हैं, अगले साल आप मतलब 2 साल बाद आप 12th देंगे, राइट। उसके बाद JEE नीट, राइट। उसके बाद आप अपना बैचलर्स करेंगे, उसके बाद भी लगातार एग्जाम आते रहेंगे। तो किसी भी तरीके के एग्जाम को आपको क्रैक करना है, देन यू नीड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट। वो कौन सी मूवी थी जिसमें बोलते हैं कि इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, एक वैसा कुछ मूवी था, आई डोंट रिमेम्बर, राइट। विद्या बालन की मूवी थी। इसमें गॉसिप करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, लाइक। तो वैसे ही सेम चीज है कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, राइट, किसी भी तरीके के एग्जाम को क्रैक करना है, देन यू नीड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस का कुछ होगा नहीं। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आई विल ड्रॉ द डायग्राम
First, I need to draw the diagram. आजकल का मार्कर, आप लोग का प्यार चाहिए भैया, जितना प्यार देंगे उतना जल्दी हम लोग भी मोनेटाइज होंगे। फिर हमारे पास पे डिजिटल बोर्ड होगा तो शायद ये ड्रॉ नहीं करना पड़े, हमारे पास वो इमेज रहेगा और हम सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, जनता जनार्दन। राइट, दिस इज अ सेंटर, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ओ, दिस इज पी क्यू एक्स डैश, ओवर हियर इट इज वाई डैश, इसको नीचे ही लिखेंगे। राइट, इट इज वाई डैश, अगेन एक्स, ये है वाई। राइट, इसके बाद इन्होंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। राइट, ओके, इस पॉइंट को इन्होंने बोला है बी, ये है पॉइंट आपका ए। राइट, फिर इसको इन्होंने कनेक्ट किया है, और इस पे इन्होंने कनेक्ट किया है इसके साथ, और एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, दैट इज सी। ये एग्जैक्ट डायग्राम है, देखकर थोड़ा डायग्राम पजल्ड भी हो जाते हैं, बट जरूरी नहीं कि जो चीज डिफिकल्ट दिखे वो डिफिकल्ट हो। एज लॉन्ग एज आप अपने बेसिक्स पे अच्छे हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। राइट, अगेन इस क्वेश्चन में दे रखा है लाइक एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O and another tangent AB, right? They are talking about this tangent AB with point of contact C intersecting XY at A over here, and over here x dash y dash at B. Prove that, यहाँ पे प्रूव क्या करना है, that angle AOB, they are talking about this particular angle, right? ये जो एंगल है AOB, ये क्या है, ये है 90 डिग्री। ये है क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है। राइट, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शायद लास्ट ईयर या लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है। राइट, या कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। देखिए, मेरे को कोई भी क्वेश्चन याद नहीं रहता है। राइट, कि इस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, उस ईयर में वो क्वेश्चन आया था। आपका फंडामेंटल्स इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी ईयर में कोई भी क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। राइट, देखते हैं अब इसका प्रूफ क्या है। अब इसके प्रूफ को देने से पहले अगेन मैं आपको अपना जो तीसरा थ्योरम था सर्कल का, उसके पास थोड़ा लेके जाऊंगा। ये एक्सटर्नल पॉइंट था। राइट, तो मैंने आपको बताया हुआ था। राइट, दिस इज पी ए बी। तो मैंने बताया था कि ये दोनं जो ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल BOP, आपस में क्या होगा, ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल AOP इज व्हाट इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। आई होप आपको ये याद होगा। और मैंने ये भी बताया था कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, यहाँ बराबर होगा। राइट, तो कुछ ऐसा ही हम लोग करने जा रहे हैं। अब यहाँ क्या करना है, राइट, आप थोड़ा सा गौर करिए। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। राइट, क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल OPAC, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल OPAC। राइट, अगर हम ये देखें तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ सेंटर पे है। हमने क्वाड्रिलेटरल और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी कि ये दोनों लेंथ क्या होगा,
बराबर होगा, ये दोनों 90 डिग्री होने वाले हैं, राइट, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, राइट। तो इन क्वाड्रिलेटरल OPAC what we can write, we can write angle POA is equals to triangle एंगल COA, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। लेट्स से मैंने इसको क्या बोल दिया, मैंने बोला ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही x है, इट मींस दिस इज आल्सो x, दिस इज आल्सो x, राइट। सिमिलरली इन क्वाड्रिलेटरल, अब आप क्वाड्रिलेटरल, अगला क्वाड्रिलेटरल देख लीजिए, OCBQ, OCBQ, राइट। ओवर हियर अगेन आप देखेंगे B is external point, तो सेम ओवर हियर these two angles will be what, it will be same, that is y and y degree। तो अगेन हम इसको लिख सकते हैं एंगल COB is equals to angle QOB and it is equals to y, right, right। अब आप देख सकते हैं ये x है, ये x है, ये y है और ये y है। और हमने आपको बताया भी था कि whenever we are having this parallel tangents, तो ये क्या होगा, it will be a diameter। अगर ये diameter है it means it will be a straight line, yes or no। what we can say that POQ is a diameter, right, POQ is a diameter, right। तो आप क्या कह सकते हैं, डायमीटर है, इट मींस इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट, इट मींस इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो अब चूंकि ये POQ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो व्हाट वी कैन से x plus y plus y इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यस और नो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री बनता है, राइट। सो अब देखिए x plus y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x plus 2y is equals to 180 डिग्री एंड x plus y is equals to 90 डिग्री, राइट। क्लियर आ रहा है, वहां तक आ गया ना, ओके। सो यही प्रूव करना था ना अपने को, AOB। नाउ AOB इज एग्जैक्टली व्हाट, अब आप थोड़ा सा और गौर करें, राइट। तो AOB जो है हमारा एंगल AOB, इट इज व्हाट, इट इज इक्वल्स टू एंगल x प्लस एंगल y, राइट। तो एंगल AOB इज व्हाट, इट इज x प्लस y की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट AOB इज व्हाट, इट इज 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस, थोड़े आड़े तिरछे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, इसका मतलब नहीं है आप अपने फंडामेंटल्स पे स्ट्रांग रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं अगले सवाल की तरफ जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus, right। तो यहाँ पे they are talking about a parallelogram, right। आपको पता है parallelogram कैसा होगा, right, कुछ ऐसा जिसमें कि ये दोनों साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे और पैरेलल होंगे, और ये दोनों साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे और पैरेलल होंगे, राइट। कुछ ऐसा एक पैरेललोग्राम है, और इसके अंदर सर्कमस्क्राइब करने के लिए क्या कह रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर में एक सर्कल अगर सर्कमस्क्राइब है तो उस तरह का पैरेललोग्राम, राइट, लाइक ये ABCD पैरेललोग्राम जो है ये क्या है, ये हो जाएगा रोम्बस। ये आपको प्रूव करना है, राइट। तो आई होप क्वेश्चन तो क्लियर होगा। चलिए देखते हैं कि ये प्रूव होगा कैसे, राइट। तो रोम्बस के बारे में आपको पता होगा कि रोम्बस इट्स अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, जिनके चारों साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बट चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं,
राइट, विल नॉट टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल्स ओवर हियर। चलिए तो देखते हैं, लेट मी ड्रॉ अ बिगर डायग्राम फॉर दिस। आज के दिन का ये है क्वेश्चन नंबर 9, राइट। ये है हमारा पैरेललोग्राम, और प्लीज थोड़ा बेयर कीजिएगा मेरा ड्राइंग के साथ, राइट। ये हमारा है सेंटर ओ, राइट, ए बी सी डी, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले रहे हैं ई एफ जी और ये एच, राइट। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन दे रखा है ए बी सी डी इज व्हाट, इट इज अ पैरेललोग्राम, राइट। पैरेललोग्राम इट मींस इट विल बी व्हाट, ए बी इज व्हाट, इट इज इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं आमने सामने के साइड्स बराबर होता है, इट मींस इट इज इक्वल्स टू सी डी। फिर ए डी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी विल बी इक्वल्स टू बी सी, राइट। ये जो डेटा है वो गिवन है, राइट। और आपको प्रूफ क्या करना है, बहुत सिंपल सा चीज है। प्रूफ आपको ये करना है दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी, राइट। ये प्रूव करना है। अब इसके प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ लिख देंगे टू प्रूफ, और आपका प्रूफ यहाँ पे स्टार्ट होगा, राइट। तो हम लोगों ने दूसरा थियरम पढ़ा था क्लास 10th में सर्कल चैप्टर का, कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी, पिछले क्वेश्चन में भी किया हुआ था, राइट। तो इसको आप देख सकते हैं, प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी जी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, बी एफ के, राइट। ए जी जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल्स टू ए एच, राइट। क्लियर है। अब आ जाते हैं यहाँ पे ई सी, राइट। ई सी किसके बराबर हो जाएगा, एफ सी के बराबर हो जाएगा, और ये डी ई जो हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एच के बराबर। नाउ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने इस टाइप से ही क्यों अरेंज किया, इसके पीछे भी रीजन है। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो बी जी और ए जी क्या दे देगा मेरे को, अगर इनको हम ऐड करेंगे तो ये एग्जैक्टली किसके बराबर होने वाला है, ए बी के बराबर होने वाला है, राइट। और ये नीचे में देखिए ई सी और डी ई को जब हम रखेंगे तो ये एग्जैक्टली किसके बराबर होने वाला है, सी डी के बराबर होने वाला है। इसलिए मैंने इसको इस टाइप से अरेंज किया है, राइट। तो जब भी आप पेयरिंग करेंगे थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। अगर एक तरीके से अलाइन करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए। और इन सारे के लिए आप रीजन क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स will be equal in length when taken from a external point, right। एक्सटर्नल पॉइंट हम लोगों ने लिया था। नाउ क्या कर सकते हैं, इन सारे को अगर हम ऐड कर देते हैं, राइट, तो आपको क्या मिल जाएगा, बी जी ई सी प्लस डी, ये किन के बराबर हो जाएंगे, बी एफ प्लस ए एच प्लस एफ सी प्लस डी एच। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये ए जी और जी बी किसके बराबर होने वाला है,
ये बराबर होने वाला है ए बी के, राइट, और ये किसके बराबर है, ये सी डी के बराबर है। अब इसको आपको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बी एफ के साथ इसके एडजेसेंट कौन है, एफ सी है, तो बी एफ और एफ सी को एक साथ लेके आ जाएंगे, राइट, बी एफ प्लस ऑफ एफ सी, और यहाँ पे हो जाएगा ए एच प्लस ऑफ डी एच, राइट। तो अब थोड़ा सा देखेंगे, ये बी एफ प्लस ऑफ एफ सी जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी के बराबर, और यहाँ पे ए एच और डी एच किसके बराबर हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा ए डी के बराबर, राइट। ओके, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, आप क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी, और सिंस मेरे को पता है कि ए बी और सी डी क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, और बी सी और ए डी क्या है, ये आपस में बराबर है, तो आप किसी को भी एक को ले लीजिए, ट्वाइस ऑफ बी सी ले सकते हैं और यहाँ ट्वाइस ऑफ ए बी ले सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं दैट ए बी इज व्हाट, इट इज इक्वल्स टू बी सी, राइट। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, यानी कि ये ए बी जो है किसके बराबर हो गया, बी सी के बराबर हो गया। अब सिमिलरली इधर आके देख लेते हैं, जब ए बी जो है वो क्या है, बी सी के बराबर है, ठीक है, और सी और ए बी और किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, और बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे कंक्लूड कर सकते हैं दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। यही आपको प्रूव करना था, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, राइट। एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, और हमेशा से मैंने बोला है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, बराबर होगा लेंथ में, राइट। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, थोड़ा यहाँ ध्यान देना है आपको, राइट, कि आप इसको कैसे अलाइन करेंगे, राइट। अगर एक साइड आप अलाइन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा साइड अलाइन हो जाएगा, या तो आप इस साइड से शुरू करें, इस साइड से शुरू करें, फिर इधर जाएं और फिर इधर जाएं, राइट, नहीं तो फिर आप इससे शुरू कर सकते हैं फिर इधर जाएं। आई होप ये समझ में आएगा क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये चैप्टर चाहे आप स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो या बेसिक के स्टूडेंट हो, राइट, दोनों ही सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। बेसिक के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर 8 मार्क्स कैरी करेगा, राइट, और स्टैंडर्ड वालों के लिए 7 मार्क्स कैरी करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को आप किसी भी हालत में स्किप नहीं करेंगे, और जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करेंगे, राइट। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा आज का क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC into which BC is divided by the points of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively। इस क्वेश्चन के लिए फिगर प्रोवाइडेड है, फाइंड द साइड्स AB एंड AC। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, राइट, और ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार में चेक करने लायक है, और आप इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में, राइट। सिंस इन्होंने ये डायग्राम दे रखा है तो मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा। डायग्राम थोड़ा छोटा होगा क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं डायग्राम थोड़ा छोटा रखूंगा।
ओके, ये इन्होंने दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ। इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। क्या कुछ परेशानी हो रहा है क्या? ठीक है, जब फाइनल डायग्राम ड्रॉ हो जाए उसके बाद जूम करेंगे। हंसी तो बहुत आ रही है आप लोग को, है क्या दिक्कत हो गया है? राइट, इसी क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है, इन्होंने दिया है, गिवन है CD इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और BD इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। क्या तो दिक्कत हो रहा है? तो इतना हंसी क्यों छूट रहा है फिर? राइट, तो प्लीज इस डायग्राम को थोड़ा सा इनलार्ज कर दीजिएगा, एक बार के लिए थोड़ी देर के लिए इसको दिखा दीजिएगा। राइट, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, थोड़ा जूम कर लीजिए इसको, पर नॉर्मल कर लीजिएगा। राइट, ठीक है, ये गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है। बोर्ड का भी यूटिलाइजेशन उतना ही जरूरी है। राइट, अब पता चला यहाँ लिख रहे तो प्रूफ किधर करेंगे। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है AB का लेंथ कितना हो जाएगा और AC का लेंथ कितना होगा। AB और AC आपको कैलकुलेट करना है। राइट, तो सिंस अगेन आप गौर करिए, ये हमारा सेंटर O है इस सर्कल के लिए, तो C एक्सटर्नल पॉइंट से ये हमारे दो टेंजेंट, यानी कि इसकी वैल्यू अगर 6 है तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी वैल्यू अगर 8 सेंटीमीटर तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। राइट, और आपको अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनको x मानना होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, प्रूफ पे आते हैं। लेट, मैं थोड़ा यहां से शुरू करना चाहूंगा प्रूफ, क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए होगा इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। राइट, राइट राइट, दैट्स फाइन फाइन फाइन, आप प्रूफ कह लीजिए। ठीक है, या फिर आप किसी को कह लीजिए कि क्या फाइंड करने वाले हैं। राइट, चलेगा चलेगा, प्रूफ फाइंड जो कहना कह लीजिए, बट वाइज सेम सेम, डिफरेंस इज तनी मनी। राइट, तो अब इस प्रूफ को देखेंगे। राइट, तो यहां पे कर रहे हैं लेट AF इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, और सिमिलरली AF किसके बराबर हो जाएगा, AE के बराबर हो जाएगा। राइट, नाउ अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि सब कुछ तो दे रखा है भैया, अब इस x तक आप पहुंचेंगे कैसे। राइट, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये कंप्लीट ABC जो हमारा ट्राइंगल है, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा। तो अगर आप थोड़ा सा डायग्राम को विजुलाइज कीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ। राइट, तो कुछ ऐसा डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर इस पार्ट का सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट के एरियाज को अगर हम कलेक्टिवली ऐड कर दें तो पूरे एरिया का ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। राइट, तो इसी चीज को करेंगे। देखिए करते हैं कैसे, समझ में आ रहा है? 3 सब सेक्शन में तोड़ के फिर आगे बढ़ना है। वो हम कर देंगे, देखिए कैसे तीन तीन ट्राइंगल यूज होगा है। तो रखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ रहा है। राइट, तो ये किसके बराबर होगा, अगर इसको हम थोड़ा सा यहीं पे कलेक्टिवली लिखते हैं, स्पेस की कमी है, तो आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल
बी ओ सी, राइट, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां से देख लीजिए ए ओ सी ले लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ले लेंगे, बी ओ ए, राइट। होगा, 3 ट्राइंगल दिख रहा है ना, राइट। ओके, तो अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं ये हमारे लिए, ये हमारा क्या है। इस क्वेश्चन में एक और चीज देखते हैं कि रेडियस इन्होंने दिया या नहीं दिया है। अच्छा, रेडियस भी इन्होंने दिया हुआ है, तो हमारा रेडियस जो है वो है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये यहाँ पे 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा और यहाँ भी 4 होगा, राइट। तो अब आप देख सकते हैं, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बीओसी की बात करेंगे तो हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा, 6 प्लस ऑफ 8 14, राइट, इंटू हमारा हाइट जो है वो है 4, प्लस अब आ जाते हैं ट्रायंगल ए ओ सी में, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा हमारा 6 प्लस ऑफ एक्स, राइट, इंटू 4 कर देंगे, प्लस हाफ बी ओ ए में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 8 प्लस ऑफ एक्स इंटू 4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि सब कुछ यहीं जितना हो सके सिंप्लीफाई कर दें इसको यहीं पे, राइट। ये यहाँ से ही हो गया, राइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 28 प्लस, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस ऑफ 12, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस ऑफ 2x, राइट। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और यहाँ पे 28 और 12 हो जाएगा हमारा 40, 40 और 16 56, राइट। 4x प्लस ऑफ 56 सेंटीमीटर, राइट। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, राइट। ऐसा ही होगा, राइट। यहाँ हो गया। अब लेकिन बात है कि हमारा एरिया तो फंस गया यहाँ के, अगर कहीं से अगर ये एरिया हमें मिल जाए तो इस x का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन भैया ये एरिया मिलेगा कैसे, राइट। तो अब थोड़ा सा गौर करिएगा, तो ये हमारा टोटल लेंथ कितना है 14 है, ये x प्लस ऑफ 6 है, ये 8 प्लस ऑफ x है। तो क्या हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल सकते हैं, राइट। तो देखते हैं कि भैया हीरोन्स फॉर्मूला क्यों इतना यूजफुल हो जाता है। अब हीरोन्स फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा, राइट। यहाँ पे अप्लाई करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट। तो यहाँ से अब सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सारे साइड्स को ऐड करके और हाफ कर देंगे, x प्लस ऑफ 6 x प्लस ऑफ 8 बाई 2, अगेन यहाँ पे देखिएगा ये कितना हो जाएगा 28 प्लस ऑफ 2x बाई 2, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 14 प्लस ऑफ x। कितने तो समझदार आप लोग हैं, ये 14 प्लस ऑफ x आया कहाँ से। नाउ अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, s इंटू एस माइनस ऑफ ए, एस माइनस ऑफ बी, एस माइनस ऑफ सी। देखिए शुरू में ही मैंने बोला है कि क्लास 9 का भी फॉर्मूलाज आप लोग को याद रहना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि क्लास 10 का हो गया, क्लास 9 हो गया तो उसके बाद फिर वो कुछ यूज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, s की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये s की वैल्यू अपनी कितनी आई हुई है 14 प्लस ऑफ x, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 प्लस ऑफ x, राइट। s माइनस ऑफ a, तो 14 प्लस ऑफ x, a हमने मान लिया है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 14, s माइनस ऑफ b, तो 14 प्लस ऑफ x
माइनस ऑफ बी, तो माइनस ऑफ बी के लिए हमने x प्लस ऑफ 6 लिया हुआ था, तो मैं डायरेक्ट x माइनस ऑफ 6 कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 14 प्लस ऑफ x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 8, राइट। यहाँ से ये 14 कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से भी x कैंसिल, राइट। तो ये मिल जाएगा 14 प्लस ऑफ x, यहाँ बचेंगे हमारे पास x भाई साहब है, यहाँ पे कितना बचेगा 8, और यहाँ कितना बचेगा 6, राइट। तो यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट। ये कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस ऑफ x इंटू x इंटू, अगर इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 14 प्लस ऑफ x इंटू, ये कितना हो जाएगा 8 6 48 x, राइट। इसको यहीं छोड़ दीजिए। क्लियर? परेशान नहीं होना चाहिए। परेशान क्यों नहीं हो रहे परेशान? कि यहाँ से अब यहाँ पे ये भाई साहब नॉर्मल हमारे बैठे हुए हैं, यहाँ आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका सारा कुछ जो स्क्वायर रूट में आ रहा है, तो बनेगा फिर कैसे सवाल? क्या करेंगे फिर इसके बाद से? ऑब्वियसली आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे अब जब इन दोनों को बराबर करेंगे, लेट्स से इसको आपने मान लिया इक्वेशन 1 और लेट्स से इसको मान लिया आपने इक्वेशन 2, तो दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या लिखेंगे 4x प्लस ऑफ 56 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 14 प्लस ऑफ x, राइट, इंटू 48x, राइट। क्या आगे क्या किया जा सकता है? थोड़ा सा गौर करिए, थोड़ा सा एडवांस लेके जाएंगे कैलकुलेशन। क्या यहाँ से आप 4 कॉमन निकाल सकते हैं? थोड़ा सा गौर करिए, तो जब आप 4 कॉमन निकाल के लाएंगे तो एग्जैक्टली वो 16 कॉमन निकल के आएगा, राइट। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 16, अंदर में क्या बचेगा x प्लस ऑफ 14 का स्क्वायर, इतना तो समझ आ ही रहा होगा आपको, राइट। इसको कर देंगे 14 प्लस ऑफ x, और ये हमारे भाई साहब 48x बैठे हुए हैं, तो क्या इसको 3 टाइम्स में हम कैंसिल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ये देखिए x प्लस ऑफ 14 या 14 प्लस ऑफ x सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास लेफ्ट ओवर क्या बचेगा? हमारे पास लेफ्ट ओवर बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या है, गौर करिए, और कुछ बचा हुआ है 3x बचा हुआ है अपने पास, राइट, ठीक है। तो अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 14, तो x इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, राइट। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंदी है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो सकता है, राइट। यहाँ पे आपने x की वैल्यू जो है वो 7 कैलकुलेट कर ली है। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 7 का वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे भी 7 का वैल्यू रख देंगे, राइट। तो देखते हैं ये हमारा ए बी क्या हो जाएगा, ये बेसिकली था x प्लस ऑफ 8, तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करते हैं, राइट। आप लोग ऐसे पेपर में इरेज मत करिएगा, आपको वहां लिखना पड़ेगा, आप एक लाइन और नीचे लेके जाइएगा। तो ये ए बी हमारा क्या है, x प्लस ऑफ 8 है, राइट। x की वैल्यू कितनी आ गई 7 प्लस ऑफ 8, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू कितनी है x प्लस ऑफ 6, राइट। तो ये हो जाएगा 7 प्लस ऑफ 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, राइट। थोड़ा सा क्या आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा कि आप कैसे इस चीज को परस्यू करते हैं, राइट। फिर उसके बाद से यहाँ के कैलकुलेशन को अगर आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंशन पे आइएगा तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि 56 का आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा कि यहाँ से आप क्या कॉमन लेके आइए कि आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व
कर सकते हैं, राइट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रह गया होगा। आई होप आप लोग समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन का जो 11वां क्वेश्चन है उसकी तरफ। अगेन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके लिए, राइट। देखने में भी कभी कभी क्वेश्चंस जो होते हैं ना बड़े अटपटे से दिखेंगे आपको, राइट, तो उसमें परेशान नहीं होना है। हमेशा ध्यान ये रखना है कि जो आपने पढ़ा है, जितने भी थियरम्स आप जानते हैं उनके स्कोप में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बियॉन्ड ये लोग नहीं जाएंगे, राइट। अब ऐसा नहीं है कि आप क्लास 10th में और आपसे क्लास 11th के कॉनिक सेक्शन का सवाल पूछा जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जितना आपने थियरम पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आज के दिन का 11वां क्वेश्चन, राइट। अगेन ये भी क्वेश्चन काफी बेहतरीन है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने बात करा हुआ है कि आपके पास क्वाड्रिलेटरल है and you are having a circle circumscribing in that, and the opposite angles are what? Opposite angles are supplementary. It means supplementary means what? Sum of two angles will be 180 degree, right? यानी कि आमने सामने का जो एंगल होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा, राइट। तो देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, राइट। देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, अगेन आपको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा मेरे ड्राइंग के साथ, इतनी बेहतरीन ड्राइंग है मेरी, ओके। ये सर्कल का मंडा ज्यादा लग रहा है, वॉट एवर इट इज, तो आप इसको समझ लीजिएगा, ओके। इसका सेंटर क्या है? ओ है, राइट। और यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी डी, राइट। अब आपको क्या करना है? इनको ज्वाइन करना है, राइट। आप ज्वाइन कर लेंगे, ओ डी ओ सी को ज्वाइन करेंगे, ओ बी और ओ ए को ज्वाइन करेंगे। मैं यहाँ सेंटर ले लेता हूँ, यहाँ पर सेंटर, ओके, राइट। तो ये आपका डायग्राम है, ठीक है। ए बी सी डी इज व्हाट यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन क्या है? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, राइट, ओके। और आपको यहाँ पे क्या करना है? प्रूव, टू प्रूव, राइट। मैं सप्लीमेंट्री के जगह पे डायरेक्ट एंगल्स के बारे में लिखूंगा, दैट एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी is what it is equals to 180 degree, right? Similarly, angle AOD, angle AOD plus angle BOC is what it is 180 degree, right? या तो आप इन दोनों को कह दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, राइट, या फिर आप कह दो कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या है? 180 डिग्री है, राइट। थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। अगेन अब क्या करेंगे? हम इनको ज्वाइन करेंगे, राइट। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, लेट्स से ई एफ जी एच। आप इनको ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या 90 डिग्री है, ये क्या 90 डिग्री है, राइट। ये क्या है? 90 डिग्री है, और ये क्या है आपका? 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है, राइट? कभी भी रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री क्रिएट करता है, ओके।
चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा प्रूफ के लिए, राइट। शुरू करते हैं यहां से। इन ट्रायंगल EOD, यानी कि ट्रायंगल EOD, राइट, एंड ट्रायंगल HOD, इन दोनों को देखेंगे, राइट। अब थोड़ा सा गौर करिए, ये हमारा क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ओके, तो और ये हमारा जो OD है इन दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो हमारे राइट हाइपोटेनस साइड RHS क्राइटेरिया के हिसाब से क्या होगा, दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, राइट। और हाँ, प्लीज नोमेनक्लेचर के साथ भी क्लियर रखिएगा, राइट, कि आप कहाँ से, यहाँ से E से शुरू कर रहे हैं, O जा रहे हैं, D जा रहे हैं, फिर उधर सिमिलरली H से शुरू कर रहे हैं, O जा रहे हैं, फिर D जा रहे हैं। तो इन सब चीजों से अब हम क्या ले सकते हैं, दैट एंगल HOD और एंगल EOD जो है वो क्या है, बराबर है, राइट। लेट्स से इनको मैंने बोल दिया ये है x, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये x है। चलिए अब वैसे ही देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में। तो अब आप गौर करिए कि क्या बार बार ये प्रूव करना जरूरी है। तो सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, दैट दीज टू एंगल्स, राइट, दैट एंगल HOA is equals to angle GOA, it is equals to what, y, मैंने इन दोनों एंगल्स को y मान लिया है, राइट। उसके बाद से फिर इन दोनों एंगल्स को चेक करेंगे, तो लिखेंगे एंगल GOB is equals to angle FOB, that is equals to Z मान लिया हमने। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। एंड पे इस डायग्राम को थोड़ा जूम कर दीजिएगा, राइट। और सिमिलरली एक और पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे FOC, राइट। तो एंगल FOC जो है ये किसके बराबर है, एंगल EOC के बराबर है, जिसको कि हम लोगों ने A मान लिया है, राइट। तो ये एंगल क्या है, A है, और ये एंगल भी क्या है, A है, राइट। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी पॉइंट के अराउंड, राइट, किसी भी पॉइंट के अराउंड, मान लीजिए लेट्स से हमने कोई एक पॉइंट लिया, तो किसी भी पॉइंट के अराउंड कितना एंगल बनता है, वो एंगल बनता है 360 डिग्री, राइट। तो अगर हम इस सेंटर की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट सेंटर है, तो इसके अराउंड क्या होगा, 360 डिग्री बन रहा है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, राइट, कि x प्लस x प्लस y प्लस y प्लस z प्लस z प्लस a प्लस a, इट इज व्हाट इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकालें तो x प्लस वाई प्लस z प्लस ऑफ a क्या है, ये हो जाएगा 360 डिग्री। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, दैट x प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ z प्लस ऑफ a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। नाउ अभी भी हमारा पॉइंट इंटैक्ट है कि x प्लस ऑफ a और y प्लस ऑफ z जो है, आप देख सकते हैं कि क्या हमने अचीव कर लिया है कि नहीं। अगर आप बात कर रहे हैं एंगल COD और एंगल AOB का, राइट, तो x यहाँ पे देखिए, अच्छा थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देता हूं मैं, तो इसको लिखा जा सकता है x प्लस ऑफ a, मैं अगर इसको री ऑर्डर कर देता हूं तो x प्लस ऑफ a और y प्लस ऑफ z को अगेन क्या लिखा जा सकता है, 180 डिग्री। तो x प्लस ऑफ a को हम क्या लिख सकते हैं, आप गौर करिए, एंगल AOB, सॉरी ये हो जाएगा एंगल COD, तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल COD। और ये हमारा y प्लस z जो क्या है,
ये है एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। सिर्फ क्या करना है, इसको आपको चेंज करना है, राइट। आगे पीछे करेंगे यू विल गेट द सेम थिंग। तो एक तो पार्ट मिल गया, दैट एंगल COD प्लस एंगल AOB इज व्हाट इट इज 180 डिग्री, एंड इसी के साथ सिमिलरली एंगल AOD plus angle BOC is what it is 180 डिग्री, राइट। सिर्फ नेमिंग का अरेंजमेंट करना है एंड योर प्रूफ इज रेडी, राइट। तो आई होप ये भी प्रोसेस आपको समझ में आएगा कि जब भी आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर यहाँ पे इन दोनों को, फिर यहाँ इन दोनों को, फिर यहाँ इन दोनों को करेंगे और आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे आपको। आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपने थियरम्स पढ़े हुए हैं, राइट, उसके बियॉन्ड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, चाहे कुछ भी हो। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास 9 के थियरम्स आपको पता होना चाहिए, और क्लास 10 के जो हमारे 4-5 जो थियरम्स हैं उसको आप जान के रखिए, और आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग को ओपन करके रखिएगा, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। और मैं इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके सामने, जो कि और भी बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। और अगेन मुझे ये बोलना पड़ेगा कि जैसा प्यार अभी तक आप लोगों ने दिखाया वो भी आगे दिखाते रहिए, मेरे चैनल को और सपोर्ट करिए, और मैं और भी बेहतरीन कंटेंट के साथ आप लोगों से मिलूंगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक एंजॉय योर डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।